नमस्ते, मैं हूँ केतकी चितले और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। यदि आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम। यहाँ पे हम सोशियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, जुडिशियरी, पॉलिटिक्स इन जनरल और जनजागृति, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ऐसी सारी अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। फिलहाल हमारी सीरीज चालू है लव जिहाद के ऊपर, कैसे लड़की को फंसाया जाता है। हर लड़की बेवकूफ नहीं होती। गर्ल्स आर नॉट दैट स्टूपिड बट दे आर प्लेड विथ। खेला जाता है उनके साथ। ऑफ कोर्स एज यूजुअल ये वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होने वाला है। पहले अंग्रेजी में बात होगी, हिंदी के लिए आप चाहे तो आई थिंक 3-3.5 मिनट फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड या सॉरी, बैकग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, शाम का वक्त है तो अभी बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा भाई। अंग्रेजी में देखिए। So we have been talking about grooming and this is the part of giving her the bait. You can say, you can call it a bait. Because they hang out in a group. We spoke about that in the last video, how they behave in a very subtle, not forceful, not obvious out there, putting oneself out there. They don't behave that way. We spoke about that as well. And today we are going to speak about the rest of the 3 things in the subcategory of grooming, which I have labeled as the bait. So, they behave very courteous, very respectful towards the female. Very respectful. Not like our guys wherein they'll be like, chalo, I'll drop you. No, they are not like that. They are very respectful, they keep their space, but at the same time, they make her feel reassured. They make her feel safe. I know I'm using this word time and again. I'm repeating it because it is very, very important. Keep this word in your head because it is going to keep on popping up over and over again. Making her feel safe. They're very courteous and respectful. The 4th thing is, after hanging out for a couple of months, weeks, after a long period of time that is, they offer to start dropping her off and picking her up while going out for these group hangouts. Okay, they are still not taking her out on a date. No, they are only offering her to pick up from her place to wherever the friend circle is going to meet, hang out, and then they offer her to drop back home. That's it. Okay? She's still feeling safe. They are not taking her anywhere else. Pick her up, hang out, drop her back home. That's it. No direct communication sort of a thing happening as of now. They, after a point, after this pick and drop thing keeps on happening, they lose the subtleness. In the sense, they're still respectful, but they are not subtle. They start being obvious without being obnoxious about the way they feel about her, about how they have started liking her company more than the other girls. That's all that they say. They don't make it sound as if I'm in love with you, but the only thing that they would say is like, to give her the bait, they would be like, I like your company more than the other girls. But they don't take her out on a date. Not yet. So we will be coming back. The next video will be what I'm going to call as hook. I know my fishing terms are not that great because I have never fished in my life, but I am using those terms as a metaphor, and I might be totally wrong, so please correct me, whoever fishes.
So yes, we'll be coming back with the hook in the next video. तो हमने जैसे कि अंग्रेजी में अभी कहा कि हमने एक खुद नाम दिया है बेट करके. बेट यानी कि BAIT बेट है यहाँ पे. बेट यानी कि चूहे को कैसे पकड़ना है, तो कुछ खाने पीने के लिए रखते हैं और फिर वो खाता है और फिर मरता है, राइट. पॉइजन डालते हैं हम, रैट पॉइजन. तो लेकिन वो खाने के लिए कुछ तो डालते हैं ना पहले उसको. बेट, मुझे हिंदी में शब्द पता नहीं है, तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए उसे क्या कहते हैं. तो ये शुरुआत होती है. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, 2 पॉइंट्स मैंने कवर किए थे पहले वाले वीडियो में कि पहली बात तो ये है कि ग्रुप में वो हमेशा हैंग आउट करते हैं, अकेले हैंग आउट नहीं करते. और हल्की से एक उसकी तरफ सटल होता है ना, हल्के से उसकी तरफ देखते हैं, ज्यादा ऑब्वियस नहीं करते, ज्यादा उसकी तरफ देख के स्माइल फेंकते नहीं है. जैसे कि हम लोग में हमारे जो लड़के हैं वो फटाक से ऑब्वियसली बोल देते हैं हिंदू लड़के कि देख तू मुझे पसंद आती है. ऐसे ये लोग नहीं करते, ये धीरे धीरे जाल में फंसाते हैं, क्योंकि इनका पूरा प्लान ही फंसाना होता है. तीसरी स्टेप होती है कि वे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट. इतना रिस्पेक्ट तो हमारे कभी माताश्री या पिताजी ने भी हमें कभी दिया नहीं होगा. मॉम डैड कभी देते ही नहीं है रिस्पेक्ट, वो बात अलग है. लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सीरियस हो जाते हैं वापस, जोक्स अपार्ट. बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं वो लड़की को, जो उसने लाइफ में कभी किसी से नहीं देखी होगी, इतनी रिस्पेक्ट. फिर चौथी स्टेप, उसमें क्या करते हैं, लड़की को पिकअप और ड्रॉप करने की ऑफर देते हैं. अकेले डेट पे नहीं जा रहे हैं अभी भी, ये ध्यान में रखिए. केवल लड़की को पिकअप करके फ्रेंड्स के साथ लेके जाते हैं, फिर वो लोग हैंग आउट करते हैं, मस्ती मजाक होता है, और फिर उसे वापस घर ड्रॉप करके अपने घर या कहीं पर भी चले जाते हैं. बिल्कुल गलत तरीके से लड़की के साथ बर्ताव नहीं करते, उसे बहुत ज्यादा सुरक्षित फील कराते हैं. जैसे कि हमने अंग्रेजी में अभी कहा कि सेफ, ये शब्द को ध्यान दीजिए, इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैं वापस बार बार दोहराती रहने वाली हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसको सुरक्षित महसूस कराना, और ऐसे ही वो लोग उसको फील कराते हैं. अब ये पिकअप एंड ड्रॉप चलता है चंद दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, और फिर इसके बाद वो लड़का लड़की को कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद आती है, बाकी लड़कियों से ज्यादा मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद आती है. कभी ये नहीं कहते कि तुम पसंद आती हो, कहते हैं तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगी है, तुम्हारे साथ बात करना, क्योंकि पिकअप एंड ड्रॉप करते वक्त भी तो 4 शब्द कुछ तो बातें होंगी ना. तो ऐसे शुरुआत करते हैं. अभी भी डेट पे नहीं लेके जाते, प्लीज ये ध्यान में रखिए. अभी भी फ्रेंड्स के साथ ही ग्रुप में हैंग आउट करते हैं, लेकिन तुम्हारी कंपनी, तुम पसंद आती हो ये नहीं कहते, तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी लगती है. अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिसको मैंने नाम दिया है हुक करके. तो उसमें और ज्यादा हम साइकोलॉजिकली साइकी के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं. तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव.